Good morning, students. My name is Ajit. So today we are going to start third chapter, that is life processes in living organism, part 2. Okay. In the previous chapter, we have learned how cell division happens by mitosis and meiosis. There are also some topics like how carbohydrates, how proteins, fats helps our body. Okay, so that all understanding we completed in second chapter. Now in this chapter we are going to see one of the important, very essential life process. Okay, before and that is reproduction, but obvious. But before going for the reproduction, let's get familiar with other life processes as well. Okay, so which are the life processes happens in a living organism? One of that is nutrition. We also call that nutrition as a digestion. Okay, also respiration. यह सभी आपको पता है, दोनों हमारे लाइफ का unavoidable part है. Also excretion is also that much essential. And sensation and response का alternate हम लोग बोल सकते हैं कि responsiveness to stimuli. ये हम लोग ने चारों चीजें पहले स्टैंडर्ड्स में पढ़े हुए हैं. एंड दीज 4 थिंग्स आर इसेंशियल टू रिमेन अलाइव ऑन द अर्थ. ओके, सो ये चारों चीजों से हम लोग जिंदा तो रह सकते हैं. ओके, बट रिप्रोडक्शन का टू रिमेन अलाइव ऑन द अर्थ, इसका और इसका कुछ रिलेशन नहीं है. ओके, बट रिप्रोडक्शन इज अ लाइफ प्रोसेस विच हेल्प अस to continue our species of that organism, means to continue carry forward our species for the next years. Okay, again let me repeat, reproduction is not meant using reproduction, okay, we cannot remain alive on the earth, but it helps to maintain the continuity of the species. ओके, स्पेसीज मीन्स व्हाट, ह्यूमन की स्पेसीज रहती है, देन टाइगर की स्पेसीज रहती है, बर्ड्स की स्पेसीज रहती है. तो ये स्पेसीज आगे जाके कंटिन्यू होगी. ओके, और अपना ये जो हायरार्की है या फिर अपना ये जो फ्लो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो आगे आगे बढ़ते जाएगा. ओके, मतलब ह्यूमंस को बढ़ाएंगे बाय गिविंग बर्थ टू न्यू स्पेशी. Okay, not a new species, its own species, but for the new one, it will give birth to young one. Okay, ये young one बाद में adult होके again it will give birth to new one. ठीक है, and so on they will continue their species. Okay, and this happens for all living organism. So this reproduction is very essential topic. Okay, and इसके बारे में हम लोग पूरा जानकारी लेने वाले हैं in this third chapter में. So let's get familiar with the definition. Okay, so what is the definition? A simple definition of reproduction. So simple definition of reproduction is formation of new organism. Formation मतलब तैयार करना. What to form? A new organism. नया जीव पैदा करना. Of same species मतलब human will produce human only. Okay. Then tiger will produce tiger, means what, formation of new organism of same species by earlier existing organism. earlier existing organism को मैं इन शॉर्ट बोलूंगा पेरेंट्स. ठीक है, सो earlier मतलब पुराने वाले, existing जो जिंदा है organisms, living organisms, उन्हीं से एक नया फॉर्म होगा organism. Okay, of same species. Okay, let me repeat again, formation of new organism of same species by earlier existing organism is called as reproduction. Okay, let me repeat again, formation of new organism of same species by earlier existing organism मतलब parent. Okay, is called as reproduction. ठीक है. Also, reproduction occurs mainly by 2 methods. Okay, one of it is asexual reproduction, another thing is sexual reproduction. So there are 2 types of reproduction basically, sexual and asexual. So reproduction का हम लोग ने यहाँ पे चार्ट ही बनाया है, एंड ये पूरा चार्ट ही हमारा ये लेसन है. ओके, और हम लोग को हर एक टॉपिक को इन डिटेल पढ़ना है. ठीक है, सो रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स है, asexual reproduction and sexual reproduction. Okay, asexual reproduction further gets divided into 2 parts. Two types. Asexual reproduction in unicellular organism, asexual reproduction in multicellular organism. ठीक है,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फ्यूजन आता है, जिसमें अगेन सिंपल बाइनरी फ्यूजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन। ओके, ये एक टाइप है, इसके 3 सब टाइप है। अगेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर में मल्टीपल फ्यूजन करके भी एक टाइप है, एंड बडिंग करके भी एक टाइप है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या आता है? फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। तो अभी आप बोलोगे सर इसका यूज क्या है? ये चार्ट बोर्ड में आ सकता है। ऑल्सो दे विल आस्क यू टू गिव द नेम्स, give name of asexual reproduction in unicellular organism. So you will have to write these names, okay, so that they might ask you for 1 mark, 2 marks, and so on. If they ask you for the this flow chart, they will ask you for 3 marks. Okay, so asexual reproduction के names we have covered. Okay, in detail we'll see going forward in next videos. Okay, now we'll go for the sexual reproduction, another type of reproduction. That is sexual reproduction के 2 steps रहते हैं। टाइप्स यहाँ पे, स्टेप्स यहाँ पे, बस मतलब ये दोनों स्टेप यहाँ पे भी परफॉर्म होते हैं और यहाँ पे भी। सो फर्स्ट इज गैमेट फॉर्मेशन एंड सेकेंड वन इज फर्टिलाइजेशन। तो गैमेट फॉर्मेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है, और ये दोनों भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हिस्सा है। ओके, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन further gets divided into 2 types, that is sexual reproduction in a plant and sexual reproduction in an animal. Hope so you understood this flow chart. Okay, my suggestion is you will have to write this draw this flow chart in your notebook by heart, this definition as well. Okay, if we have covered this one, then we'll go for the next topic. So now we will understand एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट। जैसे मैंने बात किया, वी हैव कवर्ड द फ्लो चार्ट। ओके, अभी ये फ्लो चार्ट का पहला हम लोग ने टाइप देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर और सेवरल अदर टाइप्स है, राइट, उसके। सो विल सी दैट वन बाय वन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज व्हाट? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। अगेन ये प्रोसेस, रिप्रोडक्शन है मतलब क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने का प्रोसेस। ओके, बट कैसे? बाय एन ऑर्गेनिज्म। ये कौन बनाएगा? ऑर्गेनिज्म ही बनाएगा। ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय एन ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनिज्म एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। ओके, और ये प्रोसेस, लेट मी रिपीट अगेन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय एन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज। ओके, ये ऑर्गेनिज्म एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा of same species but without involvement of gametes. Without involvement of gamete means, let me show you an example. In sexual reproduction, not in asexual reproduction. Sexual reproduction में gamete formation होता है. Gamete formation means what? Gamete is sperm cell from male and egg cell from female. तो गैमेट मीन्स व्हाट? गैमेट मीन्स स्पर्म सेल, एग सेल, इन्हीं को हम लोग जर्म सेल भी बोलते हैं। तो जर्म सेल का फॉर्मेशन होना मतलब गैमेट फॉर्मेशन, एंड दिस गैमेट फॉर्मेशन इज नॉट गेटिंग परफॉर्म इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो दिस इज, यहां पे हम लोग ने लिखा है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट। ठीक है, होप सो आपको समझा रहेगा। तो लेट मी रिपीट अगेन रिप्रोडक्शन। दैट्स व्हाई यहां पे लिखा है कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, ओके, बाय एन ऑर्गेनिज्म बट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट। ओके, मतलब गैमेट फॉर्म ना होके ये प्रोसेस होगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो इसमें इसके फायदे क्या है, मतलब ये प्रोसेस में होता क्या है? तो न्यू ऑर्गेनिज्म तो बनता है, बट दैट न्यू ऑर्गेनिज्म हैज एग्जैक्ट जेनेटिक सिमिलैरिटी। मतलब जैसे पेरेंट्स रहते हैं, मतलब लेट्स कंसीडर कि एक छोटा सा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेट्स कंसीडर कि अमीबा है, तो अमीबा के जो जीन्स रहेंगे वही ये डॉटर अमीबा के जीन्स रहेंगे। ओके, सो जेनेटिक सिमिलैरिटी रहेगी। दिस इज यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन, मतलब इसमें फादर एंड मदर दोनों की जरूरत नहीं रहती। यहाँ पे एक ही पेरेंट रहता है, मतलब एक जीव रहता है, एक जीव से 2 जीव बनते हैं। ओके, दैट इज यूनिपेरेंटल। यूनि मतलब एक, यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन।
इट अकर्स बाय मिटोसिस. मिटोसिस प्रोसेस आपको पता है. ओके, मिटोसिस प्रोसेस में सोमैटिक सेल या फिर स्टेम सेल्स का हम लोग ने एग्जांपल देखा था कि वहां पे डिप्लॉयड सेल्स ही डिप्लॉयड डॉटर सेल्स ही बनते हैं, राइट. सो दिस इज फास्ट प्रोसेस. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोसेस इज द फास्ट प्रोसेस. दिस इज द एडवांटेज. ओके, दिस इज द एडवांटेज. बट व्हाट इज द डिसएडवांटेज इज एब्सेंस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं रहता है. दैट्स वाई इवोल्यूशन होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं. इवोल्यूशन आई मीन टू से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से क्या होगा, जेनेटिक वैरायटी क्रिएट होगी. ओके, जेनेटिक वैरायटी का लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. आप अपने मॉम एंड डैड जैसे नहीं दिखते. ओके, आप समवट लुकिंग सिमिलर टू देम. सम प्रॉपर्टीज आर सिमिलर, लाइक हेयर कलर रहेगा या फिर अपनी हाइट रहेगी, बॉडी कलर रहेगा. That is matching, that is fine, but your face is not exactly matching with your parents, right? So this is why happens because हमारे बॉडी में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ है, एक नया इवोल्यूशन हुआ है. ओके, बट इन टर्म्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का एब्सेंस रहता है. दैट्स वाई जो कोई भी पेरेंट्स रहता है वो पेरेंट्स का जैसा स्ट्रक्चर रहता है, जैसा जेनेटिक मटेरियल रहता है, जैसे जेनेटिक फॉर्मेशन रहता है, वैसे ही जेनेटिक फॉर्मेशन आगे कैरी फॉरवर्ड होता है फॉर डॉटर सेल्स या फिर डॉटर न्यू डॉटर्स. ओके, सो न्यू डॉटर ऑर्गेनिजम्स में आई कुड से. ठीक है, सो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज अ ड्रॉबैक. ओके, ड्रॉबैक मीन्स डिसएडवांटेज. ठीक है, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये टॉपिक्स आपको पता चल गए हैं. देन विल गो फॉर फर्स्ट, दैट इज लेट मी शो यू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर. ओके, विल गो फॉर इट नाउ. So let's start asexual reproduction in unicellular organisms. So this is our A part. Okay. So let's start first asexual reproduction in unicellular organism, that is binary fission. Okay. So binary fission के again 3 types है जैसे हम लोग ने पढ़ा. Simple binary fission, then after transverse binary fission, and then longitudinal binary fission. तो यहाँ पे हम लोग को by understanding diagram, ओके, हम लोग को डायग्राम अंडरस्टैंड करके ही इनको समझना है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द बाइनरी फ्यूजन. ओके, बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, पैरेंट सेल है. यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो ये पैरेंट सेल है, ये पैरेंट सेल है, यहाँ पे ये पैरेंट सेल है. ठीक है, सो पैरेंट सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स 2 सिमिलर डॉटर सेल. ये पैरेंट है, इसे ये 2 डॉटर सेल मिले. ये पैरेंट है, इसे ये 2 डॉटर सेल मिले. फाइनल रिजल्ट के बारे में वी आर टॉकिंग, एंड दिस इज पैरेंट. ओके, फ्रॉम दैट पैरेंट वी हैव गॉट दिस 2 डॉटर सेल्स. ओके, सिंस दीज आर द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वी आर कॉलिंग देम एज अ सेल, बिकॉज ये एक ही सेल है. एक सेल से 2 सेल बने, एक सेल से 2 सेल एंड सो ऑन, एक सेल से 2 सेल. ओके, so that's why we are getting 2 daughter cells or 2 daughter organisms, okay, from one parent organism. ठीक है, so by mitosis or amitosis ये process form होता है. Binary fission basically happens because of mitosis. मिटोसिस में यू अंडरस्टैंड कि पहले क्या होता है, पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है एंड देन आफ्टर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है. बट न्यूक्लियर डिवीजन में व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली कि डीएनए गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्रोमैटिड्स. क्रोमैटिड्स बाद में क्रोमोसोम में कन्वर्ट होते हैं. बाद में क्रोमोसोम एक दूसरे में डिवाइड होके उससे क्या बनता है, टू न्यूक्लियस, एंड आफ्टर दैट 2 न्यूक्लियस सेपरेट होके साइटोकिनेसिस से 2 साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है एंड सो ऑन मिटोसिस प्रोसेस हैपन होता है, मतलब मिटोसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है. ओके, सो मिटोसिस प्रोसेस से बाइनरी फ्यूजन होता है. यहाँ पे हम लोग ने जर्म सेल के बारे में बात नहीं की, बिकॉज जर्म सेल अगर रहते तो मेयोसिस प्रोसेस परफॉर्म होता, राइट. और यहाँ पे सिंस इट इज हैविंग अ सिंगल पेरेंट की कैपेबिलिटी रहता है कि वो मिटोसिस से ये रिप्रोडक्शन कर सके. ऑल्सो देर इज वन मोर प्रोसेस, एमिटोसिस से भी सेल डिवीजन हो के रिप्रोडक्शन, नॉट अ सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन होता है. एमिटोसिस मीन्स व्हाट, इट इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म बट विदाउट फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम. जैसे आपको पता है क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस ओनली, तो मिटोसिस में पहले न्यूक्लियस में क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं, राइट. उसके बाद फिर बाकी वाला प्रोसेस रहता है, मतलब न्यूक्लियस में पहले क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं, क्रोमोसोम के बाद न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है. एमिटोसिस में क्या होता है,
न्यूक्लियस डिवाइड होता है और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है, बट विदाउट फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम फॉर्म ही नहीं होते, ठीक है. दैट इज कॉल्ड एज ए मिटोसिस प्रोसेस. नाउ यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे. प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स मतलब ऐसे जीव, ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी के अंदर न्यूक्लियस तो होता है बट न्यूक्लियस को कवरिंग नहीं रहती है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता है. वी हैव कवर्ड दिस इन 8th स्टैंडर्ड एंड एज वेल एज इन 9th स्टैंडर्ड एज वेल, ठीक है. सो प्रोकैरियोट्स मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके सेल्स में न्यूक्लियस तो प्रेजेंट रहता है बट दैट न्यूक्लियस इज विदाउट न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है. सो प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया आता है. प्रोटिस्ट में अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लेना, दीज आर द प्रोटिस्टा, ठीक है. एंड यूकैरियोटिक सेल, जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स में हमारी बॉडी यूकैरियोटिक सेल से. यूकैरियोटिक सेल मतलब क्या? प्रोकैरियोट्स का उल्टा. प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता है, बट यूकैरियोट्स में क्या रहता है? न्यूक्लियस को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है. दैट्स व्हाई वी कैन इजीली आइडेंटिफाई आवर न्यूक्लियस, ओके, इनसाइड सेल. बट प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस का पता नहीं लगता, बिकॉज न्यूक्लियस को कोई भी बॉन्डिंग नहीं रहती है, उसकी कुछ कवरिंग नहीं रहती है, राइट. यूकैरियोटिक सेल्स में भी बाइनरी फ्यूजन होता है. ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर. माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इनसाइड द एनिमल एंड क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इनसाइड प्लांट्स, ओके. सो इसके अंदर, सो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर व्हाट? दीज आर द ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल. सेल के ऑर्गेनेल्स है, ठीक है. सो सेल के अंदर जैसे न्यूक्लियस रहता है वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया भी रहता है. सो ये न्यूक्लियस है, ये सेल है, तो इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा. अगर ये एनिमल सेल है, अगर प्लांट सेल है तो ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट दिखेंगे, ठीक है. सो सिंपल है. माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जैसे ऑर्गेनेल है, इसके अंदर भी बाइनरी फ्यूजन होता है, मतलब एक माइटोकॉन्ड्रिया से 2 माइटोकॉन्ड्रिया बनना, एंड सो ऑन. सो बाइनरी फ्यूजन का रैंडम आइडिया वी हैव टेकन. नाउ ये जो डायग्राम है, दिस डायग्राम पर्टेन्स टू सिंपल बाइनरी फ्यूजन, ओके. तो ये बाइनरी फ्यूजन का डायग्राम नहीं है, ये तीनों भी बाइनरी फ्यूजन के ही डायग्राम है, बट दिस इज द प्रोसेस ऑफ सिंपल बाइनरी फ्यूजन. सिंपल बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है? अमीबा डिवाइड्स इन एनी प्लेन, मतलब यहां पे मैंने ये प्लेन में, मतलब ऊपर एंड नीचे ऐसा डिवाइड करने का डायग्राम दिखा है, बट इट इज नॉट लाइक दैट. मतलब एनी टाइम इट विल नॉट डिवाइड लाइक दिस मेथड. इट कैन डिवाइड इन एनी प्लेन, मतलब ऐसे भी कट करके ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट ले सकते हैं, या फिर ऐसे भी कट हो सकता है. वो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट विल गेट डिवाइड एंड सो ऑन. मतलब एनी प्लेन में वो उसका कुछ डायरेक्ट स्ट्रक्चर नहीं रहता है, राइट, कि रैंडम स्ट्रक्चर में इट कैन डिवाइड itself in any plane, okay. So this is simple binary fusion. Amoeba divides in any plane due to lack of specific shape. उसके पास specific shape नहीं रहता है, that's why it can divide itself in any plane and it is called as a simple binary fusion, okay. But in terms of paramecium, so paramecium has this structure. So paramecium का पहले कन्वर्जन होता है, पहले बल्ज बनता है, बल्ज बाद में डिवाइड होता है, ओके. एंड इसका जो डिवाइडेशन है, दैट इज अ ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन, बिकॉज ये डिवाइड हॉरिजॉन्टल मैनर में रहता है. और क्या होता है? इसके 2 पार्ट बनते हैं, तो हॉरिजॉन्टल जो डिवीजन होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन, ओके. सो इफ यू आर डन विद द ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन, देन विल गो फॉर द लॉन्गिट्यूडिनल. सो ये जो एग्जाम्पल है, दैट इज ऑफ यूग्लेना, ओके. यूग्लेना करके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहता है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूग्लेना वर्टिकल वे से डिवाइड होता है, ओके. सो दिस इज यूग्लेना. यूग्लेना का पहले यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, आप यू कैन सी. बाद में न्यूक्लियर डिवीजन आगे जाके यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, मतलब ये जो साइटोप्लाज्म है ये डिवाइड होना स्टार्ट होता है, ठीक है. एंड आफ्टर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन यहाँ पे वो पूरी तरीके से सेपरेट हो चुके हैं, एंड दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन, ओके. लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन, ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन एंड सिंपल बाइनरी फ्यूजन all comes under binary fusion, and that is one of the type of asexual reproduction in unicellular organism. Hope so you understood this binary fusion. If yes, then we'll go for next topic and next asexual reproduction in a unicellular organism, that is multiple fusion. So this is multiple fusion, okay. Multiple fusion is performed by amoeba or other protist, okay. But कब? जब there is a adverse condition. Adverse condition I mean to say whenever there is a lack of food, lack of water around them, okay. No food, no favorable condition, no water
for present for them, that time what they do, they create one covering around them. Okay, we'll discuss that. Okay, this multiple fission is performed by amoeba and other protists. Okay, so in an adverse condition, I mean to say when there is no food, no water present around them, that is called as an adverse condition. So in an adverse condition, amoeba stops formation of pseudopodia. Pseudopodia means what? Let me show you. So this is what the pseudopodia. Okay, pseudopodia से क्या होता है? Amoeba can move ahead, behind, wherever he wants. ओके, सो सूडोपोडिया फॉर्मेशन वो बंद करता है, तो ये जो सूडोपोडिया से उसका मूवमेंट होता है, वो सूडोपोडिया फॉर्मेशन अगर बंद हो गया, देन अमीबा विल बिकम सर्क्यूलर. ओके, सर्क्यूलर बन के वो उसके अराउंड क्या बनाता है? कवरिंग बनाता है. लेट्स डिस्कस दिस. अमीबा स्टॉप्स फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया एंड देयर बाय मूवमेंट्स. मतलब सूडोपोडिया अगर उसने बनाना बंद कर दिया, मतलब वो सेल से ही सूडोपोडिया क्रिएट करता है फॉर द मूवमेंट्स. अगर उसने सूडोपोडिया बनाना ही बंद कर दिया तो उसका मूवमेंट भी बंद हो जाएगा. सो दैट बाय मूवमेंट ऑल्सो गेट स्टॉप. बिकम्स राउंडेड, मैंने बोला ना उसका स्ट्रक्चर जो रहेगा वो इट विल बिकम सर्कुलर. सो इट बिकम्स राउंडेड एंड फॉर्म्स प्रोटेक्टिव कवरिंग. ओके, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग उसके अराउंड क्रिएट करेगा. वो प्रोटेक्टिव कवरिंग बट ऑब्वियस प्रोटीन्स वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह उस मटेरियल्स की रह सकती है. ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड एज अ सिस्ट. ठीक है, वो जो प्रोटेक्टिव कवरिंग रहता है जिससे अमीबा अंदर के अंदर सेफ रहे, वो प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम लोग बोलते हैं सिस्ट. तो दिस इज सिस्ट. ओके, द रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन हैपन्स इनसाइड द सिस्ट. तो ये सिस्ट में क्या होता है? सिंस दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ अमीबा, तो न्यूक्लियर डिवीजन होना स्टार्ट होता है सिस्ट के अंदर. ओके, और सिस्ट आपको पता है कि न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद न्यूक्लियस तो सेल के अंदर है, मतलब यही सेल है, यही सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है. तो पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा, बाद में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा. तो ये जो पूरा सेल है, ये सेल 2 सेल में कन्वर्ट होगा, 2 से 4 सेल में, 4 to 8 सेल एंड सो ऑन. यहाँ पे मल्टीपल सेल्स बने. तो ये जो है ये अंदर के ये डॉटेड दीज आर द न्यूक्लियस, और ये जो अंदर का मैंने जो ड्रॉ किया है दैट इज साइटोप्लाज्म, और ये एक छोटा सा अमीबा है. ओके, वी कैन कॉल इट एज अ अमीब्यूले. Okay, so let's repeat this topic again. Repeated nuclear division happens inside the cyst. न्यूक्लियर डिवीजन का अगेन रिपीटिशन होके उसका सेल डिवीजन होता है. एक न्यूक्लियर से 2, 2 से 4, 4 से 8 एंड सो ऑन. ओके, न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑल्सो अकर्स आफ्टर देन, एंड मेनी अम्यूबुले मीन्स बेबी अमीबा आर फॉर्म. ओके, एंड these are the baby amoeba or amoebules. Okay, 1, 2, 3, 4 and so on. So they remain encysted मतलब inside the cyst only till there are adverse condition. जब तक वहां पे adverse condition है. adverse condition मैंने आपको बोला, no water, no food. ठीक है, so उसको adverse condition बोलते हैं. cyst breaks down. cyst कब ब्रेक होता है? whenever, जब फेवरेबल कंडीशन अराइव्स. जब भी कभी फेवरेबल कंडीशन आती है, या फिर ये अमीबा के पास कभी भी वाटर अवेलेबल हो गया या फिर फूड अवेलेबल हो गया, देन उसके लिए वो फेवरेबल कंडीशन बन जाता है. एंड दैट टाइम व्हाट हैपेंस, मेनी अमीबुले आर रिलीज्ड. ओके, वो रिलीज कैसे होते हैं? बाय ब्रेकिंग डाउन द सिस्ट. ओके, होप सो मल्टीपल फ्यूजन यू हैव अंडरस्टूड. ओके, एंड इफ सो देन विल गो फॉर द बडिंग. ओके, बडिंग के लिए विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ यीस्ट. Okay, yeast is also one unicellular organism, comes under fungus category. Okay, जैसे अमीबा प्रोटिस्टा में आता है, yeast फंगस कैटेगरी में आता है. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस दिस इज द yeast स्ट्रक्चर. ओके, yeast हम लोग बेसिकली फर्मेंटेशन प्रोसेस में यूज करते ही है, राइट. सो ये बडिंग के लिए पहला स्टेप है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग पर्पस. ये जो थियोरी है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. Yeast, that is a unicellular fungus, okay, unicellular organism produces 2 daughter nuclei. Okay, तो ये जो एक सेल है yeast सेल, ये yeast सेल पहले क्या करेगा? ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के 2 न्यूक्लियस पहले बनाएगा. ठीक है, सो प्रोड्यूसेस 2 daughter nuclei. सो यहाँ पे देखो न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, और यहाँ पे एक न्यूक्लियस एंड दूसरा न्यूक्लियस बना. ओके, प्रोड्यूसेस 2 daughter nuclei बाय मेटोटिक डिवीजन. मेटोटिक मतलब मेटोसिस प्रोसेस. ओके, बाय बडिंग, और ये बडिंग का प्रोसेस है.
ए स्मॉल बल्ज appears ऑन द surface ऑफ parent cell. तो अगर आप देखोगे ये पूरे स्ट्रक्चर में, तो आप कंसिडर करोगे ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा स्ट्रक्चर है, ये छोटा स्ट्रक्चर है. सो दिस इज द पैरेंट सेल and this is a bulge, okay, a small bulge, okay, appears on the surface of the parent cell, okay, and that bulge is called as a bud, okay, we call that bulge as a bud, okay. One out of two nuclei, okay, one out of two nuclei मतलब दो न्यूक्लियाई से एक न्यूक्लियाई, ओके, वन आउट ऑफ टू न्यूक्लियाई एंटर्स दिस बर्ड, ओके, दो न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियस ये बर्ड के अंदर एंटर करता है, जो यहाँ पे डायग्राम में आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ है, ओके. वन आउट ऑफ टू न्यूक्लियाई एंटर्स इन दिस बर्ड, ओके, आफ्टर सफिशिएंट ग्रोथ, okay, after sufficient growth of this bud, okay, bird separates from parent cell like this is a separation process, okay. Bird is getting separated from parent cell, okay, and lives independently, और खुद का खुद लीव करना स्टार्ट करता है एज अ डॉटर यीस्ट सेल, एंड दिस विल फर्दर बिकम्स डॉटर यीस्ट सेल. तो यहाँ पे फुल बडिंग बताया है. ये दिस पेरेंट सेल अगेन गेट्स डिवाइडेड इनटू टू, तो ये नीचे वाला पेरेंट सेल वैसे ही रहेगा, एंड सो ऑन बडिंग स्टार्ट्स, ओके. तो यहाँ पे 3 बर्ड्स दिखाए हुए हैं. सो ऑन आफ्टर दैट दे विल बिकम अ सेपरेट यीस्ट सेल. ऑल टुगेदर विल गेट 4 यीस्ट सेल्स. ठीक है. So this is what we have covered budding. Okay. Now all together we have covered, I'll tell you. So all together we have covered this topic. Asexual reproduction in unicellular organism, that is binary fission, simple transfer, longitudinal we have covered, multiple fission we have covered, okay, amoeba ka, and budding yeast ka we have covered. So we have covered this whole thing. Okay. Hope so you enjoyed this video. Okay, just see that video two times, draw this flow chart, also write down asexual reproduction, sexual reproduction in unicellular organism में binary fission, will all these details, and along with that go for multiple fission and budding as well. I'll give you the pictures of this document